Hello students. So in today's class we are going to discuss infiltration. So up till now we have discussed three losses from precipitation. One was interception, second was evaporation, and third was evapotranspiration. Now we are going to discuss about infiltration. So infiltration is nothing but the entering of water into the ground यानी ग्राउंड के सरफेस में पानी का पेनिट्रेट होना इज इन्फिल्ट्रेशन. So first of all we'll read the definition as it is. The water entering the soil at the ground surface after overcoming resistance to flow is called infiltration. Resistance to flow कहाँ से आएगा? वो आएगा सॉइल के पार्टिकल्स से. अगर सॉइल के पार्टिकल्स में voids कम होंगे then resistance to flow will be more, otherwise resistance to flow will be less. Okay, so water entering the soil at the ground surface, so this point to be noted, at the ground surface after overcoming resistance to the flow is called as infiltration. This process is also termed as infiltration. This statement has been written twice, so need to focus on that. Okay, so infiltration fills the void in the soil. Suppose these are some soil particles which are interconnected. Okay, so there will be some voids in between these particles. So suppose this is the ground surface and these are the water molecules touching the ground. So when precipitation occur on the ground, it will piled up in the form of depth. So this depth will create some potential of pressure and the water will tries to penetrate the ground surface and it will move through the voids of that medium particle. Okay, so this process is essentially known as infiltration. Okay, so infiltration fills the voids in the soil, full stop. Excess water moves down by the gravity. Suppose this is the ground and water penetrating into the soil, and if water penetrates deep, मतलब इस बहुत ज़्यादा नीचे वाटर पेनिट्रेट हो जाता है तो इवेंचुअली इट विल मीट द ग्राउंड वाटर, तो ये ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा. और ये वाटर किसके थ्रू नीचे जा रहा है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी which is acting on the water and it's finally meeting into the groundwater. So infiltration fills the voids in the soil and the excess water moves down by the gravity and it is known as percolation. So सरफेस पे जो पानी, ग्राउंड के सरफेस पे जो पानी नीचे जा रहा था, दिस इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन. बट जब बहुत ज़्यादा डीप जाके ग्राउंड वाटर में मिलता है, सो दिस डीप इन्फिल्ट्रेशन इज नोन एज परकोलेशन. दिस डीप वाटर इन्फिल्ट्रेशन इज नोन एज परकोलेशन. सो डीप में जाके, गहराई में जाके जब पानी नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर से मिलता है, दैट इज नोन एज परकोलेशन. ओके, तो percolation takes place till water reach the groundwater table, as I have already told you. For continuous infiltration to occur, it is essential that percolation should be continuous. So if you want कि percolation continue रहने का मतलब water जाके ground water से मिलता रहे, then there should be मतलब infiltration का मतलब water अंदर जाता रहे. So it should be like that कि जो पानी है वो इकट्ठा ना हो ग्राउंड के अंदर, ये ग्राउंड वाटर से जाके मिलता रहे, देन द इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअस, विच इज ऑल्सो
डिपेंडेंट ऑफ ग्राउंड वाटर मूवमेंट एंड इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी कि ग्राउंड वाटर भी हल्के हल्के मूव कर रहा हो, अदरवाइज देयर विल बी ए चांस ऑफ वाटर लॉगिंग। हो सकता है कि ग्राउंड से लेके ग्राउंड वाटर तक, ग्राउंड की सरफेस से लेके ग्राउंड वाटर तक हर जगह पानी हो, एंड इन दैट केस soil will be infested with water, there will be water everywhere in the soil. So this kind of condition is known as waterlogging condition, and this condition may produce less crop. ऐसी कंडीशन में बहुत कम क्रॉप्स की ईल्ड मिलती है। ईल्ड का मतलब फसलें, जो अच्छी फसलें होती हैं या जो फसलें होती हैं वो अच्छी तरह नहीं ग्रोथ कर पाती, क्योंकि पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके संग संग हवा की भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे के सारे वॉइड्स जहाँ पे हवा थी अब हर जगह पानी हो जाएगा, तो जो क्रॉप की ईल्ड है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी जो फसलें होती हैं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर हर जगह पानी हो जाएगा, अगर पूरा ग्राउंड पानी से भर गया तब। सो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? Infiltration plays an important role in the runoff process and it can be easily understood by a simple analogy as shown. अभी देखते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया है। The soil medium where infiltration is to be observed may be considered as a small container covered with wire gauge mesh. मतलब अगर सपोज करो हमको इन्फिल्ट्रेशन कुछ मेजर करना है कैसे हो रहा है, तो जो कंटेनर है it should be covered with wired gauge mesh. कुछ वायर होते हैं, उसका मैश का मतलब होता है बच्चों जाल टाइप का, उसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि छोटे छोटे से जो वॉइड्स हैं उनके थ्रू पानी पेनिट्रेट कर जाए कंटेनर के अंदर। इट इज़ ओके, आई होप इट विल बी ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर इज पॉर्ड ओवर द गेज। अब इस गेज के ऊपर जो हमने वायर का मैश लगाया था इसके ऊपर पानी को डाला जाता है, एंड पार्ट ऑफ इट एंटर्स इनटू द सॉइल एंड सम पार्ट फ्लोज ओवर। अब देखिए सपोज करो इट इज़ द ग्राउंड सरफेस, प्रेसिपिटेशन ऑकर्स, कुछ होगा बच्चों बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, कुछ पानी अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा एंड सम वाटर विल मूव ऑन द सरफेस एंड दिस वाटर विच इज़ मूविंग ऑन द सरफेस इज नोन एज रन ऑफ, यानी पानी ऊपर फ्लो हो रहा है, सरफेस फ्लो ऊपर फ्लो हो रहा है, एंड दिस बहता हुआ पानी, दिस रन ऑफ विल अल्टीमेटली रीच द रिवर, फाइनली इट विल रीच द रिवर एंड रिवर विल अल्टीमेटली रीच इनटू द सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर द रन ऑफ एंड इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कंडीशन ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। हाउ मच इज द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल, हाउ मच आर द वॉइड्स देयर, वॉइड रेशियो कितना है, पोरोसिटी कितनी है, परमिएबिलिटी कितनी है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल दैट यू विल स्टडी इन द सॉइल मैकेनिक्स subject. So some properties are there on which infiltration and runoff depends. When soil reaches saturation condition, infiltration stops and all input becomes runoff. समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। सपोज करो it is rain and it is falling on the ground. Infiltration start, infiltration होता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो ग्राउंड है वो सैचुरेट हो जाता है, पानी से भर जाता है। क्या अब इन्फिल्ट्रेशन होगा? नो, इन दिस कंडीशन इन्फिल्ट्रेशन वोंट बी ऑकरिंग। अब क्या होगा बच्चों, पानी नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि सैचुरेशन हो चुका है। सो इन दिस कंडीशन वाटर रन ऑफ की तरह बहेगा। आफ्टर द सॉइल रीचेज इट्स सैचुरेशन ऑल द वाटर विल बी रन ऑफ, सारा का सारा पानी ऊपर बहेगा जब पूरे के पूरे पोर्स सॉइल वाटर से भर जाएंगे। ओके, यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म, कहना चाह रहा है कि जब स्टार्टिंग में जब बारिश होती है तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय पानी ज़मीन की पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है इनिशियली, क्योंकि ज़मीन सूखी होती है। तो जब बारिश होगी तो स्टार्टिंग में ज़मीन ज़्यादा पानी सोखेगी, पर जैसे जैसे पानी भरता जाएगा वैसे वैसे ज़मीन की पानी सोखने की क्षमता यानी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सैचुरेशन हो जाएगा। अब सॉइल पानी को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में सारा पानी ऊपर बहेगा। तो इन द स्टार्टिंग जब रेनफॉल जब स्टार्ट होती है तो उस समय इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है और रन ऑफ कम होता है।
बट जैसे जैसे बारिश पड़ती जाती है वैसे वैसे रन ऑफ ज़्यादा होने लगता है और इन्फिल्ट्रेशन कम होने लगता है। सो जो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, पानी जो ग्राउंड के ऊपर बह गया जिसको रन ऑफ बोला, इसी को बोलते हैं बेटा रेनफॉल एक्सिस। ऐसी रेनफॉल एक्सिस का मतलब इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पानी एक्सेस बचा रेनफॉल का वो अब बह रहा है, जिसको बोलते हैं रन ऑफ। सो इन टुडेज क्लास we have studied basically about what is infiltration. In the next class we will study what is infiltration rate and infiltration capacity. So for today's it is sufficient. We'll meet in the next lecture. Thank you.